Good morning, students. Welcome to my SST class. So, students, as you all know, we are starting the revisions of chapters 16 to 20 in the form of worksheets. So, yesterday I have sent you the worksheet number 1 and 2 from chapter number 16, Municipal Committee. Now, today we do the next chapter, chapter 17, India, our duties and rights and duties. Fine. So here is the worksheet. I have sent blank worksheet to you all, and I hope you have find out these question answers. So let's revise these question answers from one by one from chapter 17. First is India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Explain the 5 words used in the preamble to the Constitution of India. तो ये 5 words जो हैं इनको हमने explain करना है Constitution of India में. So I have written over there 5 words with their expressions. Number 1 is sovereign. Sovereign means that we are free to run our country in any way we like. So हम अपनी country में कहीं भी कैसे भी रह सकते हैं, ठीक है. Socialist means that all the people in our country will be treated as equal. तो जितने भी हम इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी को equally एक जैसा treat किया जाएगा, ठीक है. Secular means that all religions are equally respected and people are free to practice any religion. Means कि you can follow any religion. कोई आपको नहीं रोकेगा, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप गुरुद्वारे नहीं जा सकते. No, nobody can stop you. You can go to any worship places, ठीक है, and you can follow any religion. Next is democratic. So democratic, it is a democratic country because the people of the country elect their leaders. सो हमारी कंट्री जो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र भारत देश है हमारा, क्योंकि इसमें जो भी मिनिस्टर्स लीडर्स बनाए जाते हैं वो हम लोगों की वोट्स के आधार पर बनाए जाते हैं. मींस कि हम वोटिंग करते हैं और जो जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं ही और शी विल बी द लीडर. Republic means that the head of the country, president, is elected by the people and the country is run by a run by a king. So republic means कि जो हमारी कंट्री का हेड है वो प्रेसिडेंट है, जो लोगों के द्वारा जिन लीडर्स को हमने इलेक्ट किया है उन लीडर्स में जो है तो वो लीडर्स आगे प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं. सो रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द कंट्री इज़ नॉट, यहाँ पे मिसिंग हो गया है, इज़ नॉट रन बाय अ किंग. तो आपको हमारा जो कंट्री है उसको कोई राजा नहीं चला रहा है, प्रेसिडेंट चला रहे हैं. Next is mention the fundamental rights given to the citizens. So I have told you so many times, so we can write over there 5 fundamental rights: right to equality, right to freedom of speech, right to follow any religion, right to choose any profession, right to live and travel anywhere in India. Fine. Next is mention 4 of the fundamental duties of Indian citizens. So हमने fundamental duties बतानी है Indian citizens की. Follow the Constitution of India. जो भी हमारे Constitution में articles के थ्रू हमें जो rules and regulations दिए गए हैं हमें उसे follow up करना चाहिए. Respect the national flag and national anthem. हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की हमेशा से रिस्पेक्ट करते आए हैं और करते रहेंगे और करनी चाहिए. ट्रीट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज इक्वल. तो हम जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के उनको हमें इक्वली सबके साथ ट्रीट करना चाहिए. फाइन. प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट. हमें अपने इन्वायरमेंट को भी सेव करना है. फाइन. नेक्स्ट है स्टेट द 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट्स को मिलती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. प्रोवाइड प्रॉपर लिविंग कंडीशंस. लोगों को अच्छे से रहने के लिए जगहें मिलनी चाहिए, प्लेसेस मिलने चाहिए. प्रोवाइड वर्क फॉर एवरीवन. सभी के लिए उनके अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स वर्क मिलना चाहिए. इंश्योर दैट सम पीपल डू नॉट बिकम रिच बाय एक्सप्लोटिंग अदर. और ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग दूसरों को एक्सप्लोट करके खुद आगे ना जाएं, जबकि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल. हमें जो 14 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. सो जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए भी जो है अलग से उनको हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ द वर्कशीट नंबर 1 आंसर्स की. Right, fundamental rights, fundamental duties, and explain the 5 words of preamble to the Constitution of India. We have done 2 times earlier.
fine. So next is there is a worksheet number 2. Number 1 is see the pictures below and say what they say, show. First is Rashtrapati Bhavan. So Rashtrapati Bhavan, this is a pic of Rashtrapati Bhavan. नेक्स्ट इज़ पार्लियामेंट हाउस. पार्लियामेंट हाउस क्या है, ये जो पार्लियामेंट हाउस है इसके 2 हाउसेज होते हैं आगे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, right? Lower house that is called Lok Sabha and it is also the house of the people, and upper house that is called the Rajya Sabha. Fine. Then next is Supreme Court. Supreme Court is the highest court in India. Fine. And its final decision is final. Nobody can change. Fine. And this picture is the preamble of the constitution. ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये इंट्रोडक्शन दी हुई है, इसमें जो अभी हमने पढ़ा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सो दैट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन से दैट. नेक्स्ट आप देख सकते हो रिपब्लिक डे परेड, अभी 26 जन को भी आई थी डीडी नेशनल पे. आई होप आप सबने देखा भी होगा. डिफरेंट स्टेट्स के जो लोग होते हैं वो अपनी स्पेशलिटी, जो उनकी स्टेट्स की स्पेशलिटी है, चाहे वो कोई म्यूज़िक है, चाहे कोई वो डांस है, या कोई डिशेस हैं, या कोई टेम्पल्स हैं, वर्शिप प्लेसेस हैं, तो वो अपनी स्पेशलिटी यहाँ पर लेकर आते हैं. सो दैट इज़ द रिपब्लिक डे परेड. Now student, today we do only this, but tomorrow we will discuss another worksheet from the chapter number 18. Thank you. Have a nice day. Take care.